अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में चलते हैं थर्ड क्लास आमलों के आस्ताने पर। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ क्या कहने मैंने बड़ी रियायत की है, तुम्हें थर्ड क्लास का है, हालांकि तुम थर्ड क्लास भी नहीं हो। क्या कहने ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੁੱਚਲ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओए होए, ਮੈਂ ਦਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਇਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਭਾਜੀ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਂਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਲਗੜ ਬਗੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਰਾਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਚਿੱਲਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਲਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਸੀ, 35 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਧੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਲਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਲਾ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਿਆਏ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਓਏ 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 ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ये क्या आइटम था भाई? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैंने कहा बाबा जी ये लेटरिन का रास्ता किधर जाता है? ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। बाबा जी वक्त बहुत कम है, मेरी नौबत टखनों तक पहुंचने वाली है। ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਜਾ ਦੇਣਾ ਵੇਖਿਆ ਦੱਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਓਏ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੰਦਰ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋ। ਓਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਨਾ ਜੇ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ। आफ्ताब साहब मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शेख? मैं बस आपके सामने ही आमल बाबा बंगाली शाह। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਆ। ਤਕੀਆ ਦਿਓ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। वैसे बाबा जी एक मौतबाना गुजारिश करूं, ਹਾਂਜੀ एक कड़क चाय की प्याली हो जाए तो मजा ही आ जाए। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਨੋ ਘਰ ਆਇਆ। ओए पिलाओ चाय पागल के पुत्रों। बाबा जी आप मेरी हवेली बकवा दें, आपको 10 लाख दूंगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ओए 70-80 करोड़ की हवेली है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। देखो जितनी तुम्हारी बसात है उतना ही बनता है तुम्हारा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਹਵੇਲੀ ਵਿਕਵਾ ਦਿੰਨੇ। ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਹਲਕੀ? वेद अदरक ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और साथ बंद प्लस्तर। वैसे आफ्ताब साहब मेरी लाल हवेली आपने चारों तरफ से देखी है? मैंने चारों तरफ से तो नहीं, मैंने फ्रंट से देखी हुई है। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? शेख साहब का फ्यूचर अब अल्लाह अल्लाह करें, रेस्ट करें। देखें जी वो तो मैं कर ही रहा हूँ, अब करने को बचा ही क्या है। मैं कहता हूँ, बाबा बेटे की हाल है? आजो बेटे आजो। बाबा जी ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੇਬਰਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। वाह वाह वाह, आफ्ताब बेटे की हाल है? सब खैर ने? हाँ जी ठीक। बड़ा ढिल्ला बोल रहे हैं, खैर हैं? मैं कितनी दफा मना किया मुझे आफ्ताब बेटे ना कहा करो। ਬੈਠੋ ਮਾਮਾ ਜੀ। शुक्रिया बाबा बेटे। ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? बाबा बेटे बस की दसिए, यही लगता है जिवें किसी ने दोबारा पाबंदी लाई थी, हर शे बंद हो रही है। ए कौन ने? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ओ चलो होणगे, सानू की लगे। ਲੈ ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 70-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ। माशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ वाह वाह वाह, ईमान नाल। ਹਾਂਜੀ 70-80 ਕਰੋੜ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। मैं बेटे, बाबा बेटे तेरे को ला के हमेशा बरकत ही पई है, हैं? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मामा जी वो हम तवीज लेने आए थे ना, काम नहीं चल रहा। हाँ बेटे मिल गया जो चाहिए था, मिल गया है। हेलो ਓਏ ਹੋਏ। गल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख बेटे। ਲੋ ਜੀ ਮਾਮਾ ਹੀ ਆਏ ਜੇ। वालेकुम सलाम। मैंने तो हुण पता लगा हैं, शेख अपने बेटे ने। शेख साहब और की हाल बेटे? मैंने आप जैसा बंदा देखा है कहीं, उसकी लाश गालिबन नाला लई से मिली थी। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ जनाब का कारोबार क्या है? मैं बेटे मैंने कौन नहीं, दुनिया जानती है। पूछ आफ्ताब बेटे ने पूछ, हैं? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। एक मिनट,
जी ये जो बैठी हैं गालिबन जब मैं वजीर था आपने पीटीवी में ड्रामा भी किया था। जी अल्लाह तेरा भला करे बेटे, शुक्र है तुझे पहचान लिया। माशाल्लाह बड़ी अच्छी अदाकार हैं। वैसे आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? एडी सुगड़ अदाकारा तुसी अज तक नहीं वेखी होगी। जी मैं कहना शेख साहब पूरा घर संभाल दिए, सीना परोना पकाना धोना, हाय 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 इस्त्री करके इंज झाड़ के शर्ट फड़ाना, ओए होए इस बच्ची ने पता है। नहीं तो इसमें अदाकारी कहाँ है? शेख साहब काम नहीं चल रहा, मुझे ड्रामे नहीं मिल रहे, इसलिए तो बाबा जी के पास आई हूँ। ओह आई सी। ओए बाबे तुम ड्रामे करवाते हो? ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। अच्छा आप किसी को सिफारिश ही करवा दें, हमारा ड्रामा फंसा हुआ है वहाँ से चलवा दें। देखिए जी इस वक्त तो हमारी मुखालफ पार्टी बरसर इक्तदार है, मैं नहीं कर सकता। अगर वैसे ही होता तो 100 बिस्मिल्लाह। वैसे आजकल टीवी का वजीर कौन है शेख बेटे? गालिबन अता तारड़ है वो। ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। शेख बेटे मैनू बड़ा फिक्र लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। 70 करोड़ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, हवेली, कोई वारिस ही नहीं, हद हो गई। और देखें मुझे नहीं चाहिए वारस, मेरा तो हर वोटर मेरा वारस है। 5-5 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। बेटे बेटे अपना वारिस, ओरिजिनल वारिस बेटे होना चाहिए है। वो कैसे? शेख बेटे जी शादी के बारे च की सोचे? आए ओए क्या सवाल कर दिया है। वैसे शादी किसकी? ਹੈਲੋ शेख साहब सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ हामी ਤੇ ਭਰੋ। ओए मैंने नहीं भरनी ओए यार। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। वैसे मुझे क्या खिलाओगे? ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੁੱਦਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਚਿਬੜ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ये चिबड़ गोश्त क्या है? ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਿਬੜ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਬਲ अभी तो मेरे हाथ का डड्डे गोश्त नहीं खाया आपने। ਓਏ ਹੋਏ, ਡੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਡੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ। बेहतरीन होता। अस्सलाम ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦਾ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈਦਾ। ਆਜੋ ਬੇਟੇ। ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ? ਬਸ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ? वो एक कागज उन्होंने छीन लिए हैं ਕਿਸਨੇ? जिन्होंने चिला कटवाया है। ओए यानी कि तेरे को कागज भी नहीं है हवेली दे? ना जी। अस्सी पौना घंटा तेरे वारिस पैदा करने तो लागता सालिया हैं, हद हो गई है। मेरा टाइम जाया कर देता सु फड़ के। ਓਏ ਅਕਰਮ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਮਰੇ। वैसे बाबा जी कौन है, आपको देखा नहीं? बताते क्यों नहीं हो मैं कौन हूँ? ਓਹੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? कौन है? ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ। ओए मैं सदके जावा ते पहले क्यों नहीं दसया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਰਫ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕਰਾਣ ਨੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਫੇਰ वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगे। किथे रहे हो, किथे लुके रहे हो, किथे प्रॉपर्टियां लुकाइयां ये दसो तो सही, कोई चक्कर चुक्कर लाइए। परी जवानी च फिरी जा रहे हो, कुछ सानू दसो, ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करिए हैं, तुहाडे को खवाइए पियाइए। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਵੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਨੂਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹੋਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ओए फजूल मामे, ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, क्या खिदमत अंजाम देना चाहते हो तुम उसकी? क्या ਅਕਰਮ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। उसने तुम्हें कहा है मेरी शादी करवाओ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੈ। नहीं, उसने क्या ऐसी हरकत की कि तुम्हें उसकी तबीयत से लगा? ਉਹ ਸਾਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸ਼ਾਇਦ। यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ इन 2 खवातीन को। जी सही जरूर दसो प्लीज। आप भी सुन रही है ना, ये जो दूसरी साथ बैठी है जो गूंगी लग रही है। जी सर। आपने अगर तरक्की करनी है, कोई ढंग का काम करना है ना, तो इस मनहूस मामे से जान छुड़वा लो। मेरी बात समझ आई है कि नहीं? ਕਿਨੂੰ? जी आ रही है। जी सही कह रहे हैं आप। बस जान छुड़वाओ। ये बाकायदा बेगैरत आदमी है और रियल लाइफ बेगैरत आदमी है, रियल लाइफ। ਓ ਭਾਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 4 ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਗੰਜੀ ਬਤਖ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਸਲਮ ਬੇਟੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਕਰਮ ਅਕਰਮ अच्छा क्या अब क्या कह रहा है? ਅਸਲਮ ਬੇਟੇ। ਅਸਲਮ ਬੇਟੇ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ? हैं ਓਏ ਬਾਜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? और मेरी बच्चियां? वो अब तुमसे निजात हासिल कर चुकी हैं, अब उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। कितनी मानो में मासिका हैं, मेरी 2 बच्चियां गायब हो गई हैं। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਲੀ ਨੂੰ। यार तू दस मैं की करांगा?
ए बुढ़ियां हड्डियां किथे रोला जाके हैं जो कुछ आज तक कर चुके हो ना, ये मकाफात अमल है। अब तुम्हारे साथ यही होना है और होता रहेगा। बेहतर है तौबा करो, और जितनी रह गई है ना थोड़ी सी तुम्हारी मनहूस जिंदगी, उसको मीनिंगफुल बनाओ, उससे कोई ढंग का काम लो। शेख साहब मैं बचिए किथों लबा जाके ओए, बक बक बंद करो यार, मेरा दिमाग खराब किया, जाओ यहाँ से। असलम बेटे बकवास ना कर, दफा हो इथों। यार मेरा इंतजार करना है, बच्चियां लेके आ रही हैं मैं बेटे बेटे ओ मेरे बेटे गल सुनो किधर गए वो तो बेचारा बेरोजगार हो गया। अच्छा, इस जैसे को धक्के पड़ने चाहिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी, ਇਹ ਅਕਰਮ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? पता नहीं साह लेना है लगता। मसला की ये ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ऐसी की करिए? ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। नहीं ठीक तो की मुराद मैं बताऊं बाबे की मुराद ठीक से क्या है? क्या है? यही कि वो डील कर ले, जैसा इक़्तिदार मिले उसे ले ले, किसी पे उंगली ना उठाए, उफ तक ना करे। जिस तरह सिलसिला चल रहा है पिछले 77 साल से, उस तरह चलता रहने दे, और एब्सोल्युटली नाट जैसी वायातियों से गुरेज करे, और जहां भी जाए जूते पहन कर जाए। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करे। इस दवा को बच्चों को बहुत से दूर रखे, दिमाग को रहे डॉक्टर रहे। ये हंजी हुंदा सी पीटी तो यार वो कितना बेहुदा लगता था, वो जो फास्ट फॉरवर्ड में आखिरी बात, तौबा तौबा। ਉਹ ਸਕਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इतने भूखे हो तो क्यों एडवर्टाइज करते हो? ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਾ। ਵਾਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बाबा जी कोई ऐसा तवीज़ दियो इमरान खान की अकल बिल्कुल खत्म हो जाए। आए आए इस जैसे सुनहरे लोग कोई पैदा होते हैं अकरम साहब, जो अकल से नहीं सोचते, जो सोचते हैं दिल से सोचते हैं, दिल से। वाह वाह वाह। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਸਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। वैसे मैं समझा नहीं कि मामा जी के अलावा आपका असल बिजनेस है क्या? ਏ ਅਕਰਮ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਦੀ ਕਰ ਮਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਾਫ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ओ बाबा केड़ी नाफ पई? ਇਧਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਾਫ ਠੀਕ ਕਰੀ। ਇਧਰ ਆ, ਉਧਰ ਲੇਟੋ। ਲੰਮਾ ਪਾ ਬਾਬੇ, ਲੰਮਾ ਪਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਧਰ। ओ नहीं नहीं मेरी नाफ नहीं पई मैनू। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ओ ਰਹੀ। यार नहीं हैगी। ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈਗੀ? नहीं ਇੱਧਰ। बिल्कुल नहीं। ਅੱਛਾ ਓਏ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ। ना ना मैं तुम दस्या सी इधर आ, लम्मा पे। ओ कद नहीं पावा। और वो ठीक है बिल्कुल। यानी कि ये इलाज आप करते हैं? यार मेरा भी करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚਿੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਧਰ ਆ ਨਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ। यार बक बक ना कर, बस इधर आ, तेरी लम्बा पे। बस कर जा। वैसे ये जो बाबा यहाँ आया था, इसका ना कोई मकसद था ना कोई वजह। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दूं सालियो, तुम बाहर बोर्ड आवेजा करो, उस पे लिखोगे बड़ा 20 रुपए, छोटा 10 रुपए। तुम्हारी नस्लें 7 पुश्तें सवर जाएंगी, खाते रहोगे, खत्म नहीं होगा। इस फजूल आस्ताने की जगह पे तुम बेहतरीन प्लाजा बनाओगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇ। ਆ ਬੋਣੀ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ਆ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? बाबा जी ठीक ठाक, तुसी ठीक हो? ਹਾਜਤਮੰਦਾ ਸੁਣਾ। बाबा जी कोई समझ नहीं आउंदी, गल बहुत अगे वध गई। ਦਫਾ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਾਣਤ ਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ। ओए होए जो काम पै गया ना हुणे वापस होने वाला नहीं जे। वो कौन सा काम? क्या? ਭਾਈਜਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? वही ना जो करप्ट ऑफिसर है, जिसने अपनी दौलत इधर उधर बिले लगाई हुई है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ए वेखो सर, करप्ट ना कहो, मेहनत दी कमाई है। सारे यही कहते हैं बच्चू। आहा। भाईजान तुसी कहंदे हो ते सारे लोकां नूं याद आ जांदा है, सारे ही कहण लग पैंदे ने। ए वेखो करप्शन के पैसे तुम्हें निकालने पड़ेंगे, ईच एंड एवरी पेनी तुम्हें वापस करना पड़ेगा, वरना जूते होंगे और तुम होगे। ओ सर मैं ही करप्ट नजर आना? हर तरफ ये सिलसिला चल रहा है, हर करप्ट इस वक्त रो रहा है, डर रहा है। ये मौत क्यों पड़ी हुई है सबको? ਭਾਈਓ ਕੀ शेर के गुलाम फिरते हैं भागते हुए, की है? गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। वाह वाह क्या बात। मैं कहता हूँ ऐसी सूरत हाल पे इससे अच्छा शेर हो ही नहीं सकता। ਇਹ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ समझ लो घर की शायरी है। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਬਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ
नहीं मेरे चचा का है, अब्बा जी का नहीं। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ये मोहम्मद इजहारुल हक का शेर है, बहुत बड़ा शायर और बहुत बड़ा अफसर। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾ ਦਿਓ ਸਾਲ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਬੱਚਾ ਤਵੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, 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 ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ तौबा। ओए ये बेगैरती फिर कर रहे हो तुम? ਕੌਣ ਸੀ ਓਏ ਭਾਜੀ ਚੱਲਦੀ ਚਾਲ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਢਾਉਣ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋ ਚਾਹ ਚੂ ਤੇ ਪੀਏ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। झोला में पीवनी भी छोड़ दे सा, जाम सुराही भी तोड़ दे सा, वादा कर अखियां तू पिले से। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਵਿਰਾਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ए कमगल बाबे, आप इसको रिहैब क्यों नहीं भेजते? ਬਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੈਬ ਕਿੱਥੇ ਗਲੀਏ अफ्ताब साहब तो को पता है मैं MP है हम पहले। हाय, असली MPA। ਅਸਲੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ओहो, ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। ਉਹ ਆਈ ਹੈ और सही इमरान खान को मैं धोखा देता है, इमरान खान को मैं बड़ा कसूरवार हाँ सही। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਓਏ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ 20 करोड़ रुपया। ਹੈ 20 ਕਰੋੜ अब बाबा जी ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ वाह 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 वाह। हाँ जी, खा पी गए हो? खादा घाटे सही, पी ज्यादा की दे असा। ਅਰੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 9000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ओ बाबा जी को दुनिया दा एक नशा कीते, जितने नशे न सारे फूक छोड़े। ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਬਲੋ ਐਸਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ बाबा जी को यो जा मंत्र करो कि एक दा टोकन हाजिर थी वने। ਇਹਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਲੰਮਾ ਪੈ ਟਨ 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 ਡਾ 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 ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੀ ਤਾਲਿਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਹੀਰਾ ਇਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਡਨ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗੁੜ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਚ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚ ओ सालिया मैं कंडक्टर ना थले वाली जेब देख। कंटिन्यूस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूस रात पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने स्टेज आर्टिस्ट से मुतल्लिक बहुत गुफ्तगू की, लंबी चौड़ी। वो एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट व्यू था कि जिसे सुनकर कोई अच्छा टेस्ट मुंह में नहीं आता, वो सुनकर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन आयरॉनिकली उसकी बातों में बहुत सदाकत भी थी। और उसने रोना रोया था स्टेज के परफॉर्मर्स से मुताल्लिक कि स्टेज पर इस वक्त क्या हो रहा है, ये स्टेज पर कौन लोग हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। मैं नहीं जानता था भाई साहब को। अरमगान अक्सी इनका नाम है, परखचे उनके शो का नाम है। और इत्तेफाक से उन्होंने मेरा भी बीच में तस्करा कर दिया कि ये एक कसूर आपका भी है कि आपने इन लोगों को बड़ी तकरीम की जगह पर बिठा दिया। मतलब इन अदर वर्ड्स, मैं इन्हें गैलोज़ की तरफ भेज देता, मैं इन्हें कुछ सज़ाए मौत रिकमेंड कर देता, मैं इनको मातूब करार देकर जो ये काम कर रहे हैं वो इन्हें करने देता। मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या सोचकर ये कहा कि जी मेरा भी इसमें कसूर है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो बुनियादी तौर पे कसूरवार हैं। नंबर 1, वो अवाम जो इस तरह का मजाक, इस तरह की कॉमेडी जो ज़िल्लत से शराबूर होती है वो पसंद करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर कहते हैं जी हम
XXX के आदी हैं। हमारा थ्रेश होल्ड इतना हाई हो चुका है कि हम छोटे मोटे मजाक को, वो पुराना 50-50 के दौर के हंसी, अब हंसी नहीं, वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वक्त वल्गर हो गया है। आप कोई डिफरेंट चीज करके देखो भाई। दूसरा कसूर है सरकारी उम्माल का, जिनके जिम्मे स्क्रिप्ट की स्क्रूटनी और माहौल की निगरानी है। तीसरा कसूर इन प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट का है, जो पैसा कमाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। इसके अलावा और किसी का कसूर नहीं है। किसी भी तरह जो कुछ थिएटर के नाम पे हो रहा है आज, उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। मैं ज़ाती तौर पे उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, और यही वजह है कि बखुदा घिन आती है इस तसव्वुर से ही कि वहाँ पे हो क्या रहा है। मौसूफ ने जो गुफ्तगू की, इसमें सरासर ज्यादती है, मैं समझता हूँ, उन लोगों के साथ जो अब दुनिया में नहीं रहे। सरदार कमाल को अभी फौत हुए, मैं समझता हूँ चंद घंटे हुए थे, अभी उसकी कब्र की मिट्टी गीली थी जब आपने दुश्नाम तराजी की। उस जैसे बंदे का जो इंतहाई नफीस आदमी, इंतहाई खुशगवार आदमी, उसका तज़किरा कम से कम आपको रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए था। आपने उसके लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कभी होता है ना, बंदा कोई एक बात करता है तो आपको इख्तलाफ भी हो उससे, आप तब भी उसे मिलना पसंद करेंगे कि भी ये बंदा इस काबिल है, इसने अच्छी बातें की है। हालांकि उसने अच्छी खासी ठीक बातें भी की हैं, लेकिन उसके इस रवैये की बिना पर मैं कम से कम उसे मिलना पसंद नहीं करूँगा। तारिक टेडी जो इंतहाई बेनवा था बेचारा ज़िंदगी में भी, और ठीक है उसने जिस तरह का करियर गुजारा, जिस तरह की इनिंग्स खेली, उस पर आप उसके फ़न और शख्सियत पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़ात के बारे में इतने बुरे अल्फाज में याद करना, ये इंतहाई बुरी बात थी। तीसरी गलती आपने ये की कि आपने घोड़े और गधे को एक ही जगह बांध दिया। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं जो इस तरह का थिएटर नहीं करते। चौथी बात, आपने खामखा बीच में ठोंस दिया मेरा तज़किरा कि जी आफ्ताब साहब आपका भी कसूर बनता है कि आपने उन्हें बड़ी इज्जत तकरीम की जगह पे बिठा दिया। तो भी और मैं क्या करता। आप देखेंगे मेरे पास इस वक्त दो मेन प्लेयर्स जो हैं, पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, बब्बू राना और वसीम पुन्नू, दोनों थिएटर छोड़ गए। हालांकि ये भी वो सारा कुछ कर सकते हैं, और ये सारा कुछ करते रहे हैं, या बड़ी हद तक करते रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो छोड़ चुके हैं। शाहज़ब मिर्ज़ा भी कुछ ऐसा अब नहीं करता जो पहले करता था। रंगीला साहब हरगिज़ हरगिज़ सोच में नहीं सकते इस तरह की कोई चीज़ कर, वो तो वैसे भी बड़े मजहबी आदमी हैं। चुनाचे ये सोनिया मुल्तानी, मुल्तान के थिएटर में क्या से क्या नहीं होता, लाहौर में क्या से क्या नहीं होता, शी नेवर डज दैट। तो मेरे भाई, मैं तुमसे क्रेडिट तो नहीं मांगता इस चीज़ का, लेकिन ये देखो कि इसमें डिस्क्रेडिट वाली क्या बात है। तुमने पिन पॉइंट किया फैसलाबाद का एक आर्टिस्ट जो सबसे बड़ा ये है, जो सबसे बड़ा वो है, वो वाकई इतना नादिम हुआ कि वैसे ही भाग गया। हम डेली उसका चेज़ा लेते थे, उसको छेड़ते थे, उसको मना भी करते थे। मैं क्लिप्स उसे रेगुलर बेसिस पे जो मेरी नज़र से गुजरता था कि भाई अगर मैंने ये पहले देखा होता मैं तुम्हें कभी ना बुलाता कि तुम ये इतना बैगेज के साथ हो। हालांकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, वो आर्टिस्ट भी अच्छा था, इंसान भी अच्छा था, लेकिन समहाउ उसको वो थिएटर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और यहाँ की जो पंदो नसाए है उससे वो तंग आ गया, वो चला गया। और मैं ये यकीन कर बैठा था कि इंशाअल्लाह राशिद कमाल का शुमार भी इन्हीं लोगों में होगा जो इस तरह के थिएटर से बिलाखिर किनारा कश हो गए। लेकिन समहाउ मैं उसकी उम्मीद रखूँगा कि थोड़ा सा मज़ीद वो ये कर ले। अगर वो कर रहा है, किसी न किसी दिन इंशाअल्लाह ताला लौट आएगा, वापस आ जाएगा। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने का ख्याल इसलिए आया कि हम डेली इसको कल पे उठा रखते हैं, इंतहाई अहम मौजू है, और मैं इसको अपने फोरम पे करना चाहता था, क्योंकि अरमगान अक्सी ने जब इसका तज़किरा किया है तो मेरे इस फोरम के रेफरेंस से किया है। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ हम सब इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शकील साहब आप भी शरीक गुफ्तगू होइएगा। हमने साथ बुला रखा है अपने मेन आर्टिस्ट को, बब्बू राना हमारे साथ हैं, हमारे साथ अकरम उदास हैं, वसीम पुन्नू हैं, और शरीक गुफ्तगू होंगी सोनिया मुल्तानी जो 7-8 साल रेगुलर थिएटर करती रही, पिछले कई सालों से थिएटर को खैर बात कह चुकी है। जी बब्बू राना साहब। ਸਰ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਥੀਏਟਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ
ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत ही अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है। अकरम उदास साहब क्या कहते हैं आप? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦਿਲਾਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। वसीम पुन्नू साहब आप क्या कहते हैं? ਕਾਫੀ ਥੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਣ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ या सरदार नहीं, लेकिन उसकी बातों में क्या आप नहीं समझते कि कोई वजन है कि उसने डिसअप्रूव किया है, उसने बड़ा जलील किया है इस 3rd क्लास थिएटर को, जो थिएटर के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो थिएटर तो है ही नहीं, लेकिन उस मंडवे को उसने एक्सपोज तो नहीं किया, अपने गुस्से का इजहार किया और खुल खुला के किया। ये बात तो बहरहाल ऐसी है कि हम इसको डिसएग्री नहीं कर सकते इससे। डिसएग्री तो नहीं कर सकते भाईन, मगर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ है कि सरदार साहब ने मरण तो 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि भाई ये बात तो हो चुकी, सरदार साहब वाली बात तो हो चुकी, और सबसे ज्यादा तनकीद का सामना उसे करना ही सरदार साहब की वजह से पड़ा है, क्योंकि उसके तसव्वुर से भी वो ज्यादा पॉपुलर आदमी था। वो इतना पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं था जितना पॉपुलर इंसान था। जी बेशक। वो बेपनाह मोहब्बत करते थे उससे। मैं जाती तौर पर उसकी कंपनी को एंजॉय करता था, उसके साथ गप्पे लगाना बहुत पसंद करता था, और कभी किसी ने वाकई उसकी कोई शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ हमें करने नहीं ना देता, अगली बात नहीं करने देता। हालांकि कैसी कैसी बात हम सब कर जाते हैं बाज़ औक़ात कि चले हंस लेते हैं हम, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, जाती नहीं है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਰਿਹਰਸਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਓਨਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਨਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ जी पुराने थिएटर को रिवाइव करना पड़ेगा जी जी जो पहले था, जिस पे रिहर्सलें होती थी, जिस पर बड़ी मेहनत होती थी। जी शकील साहब। मेरे ख्याल में ना जी क्रिटिसिज्म जो है वो एक हेल्थी चीज़ है, सेहतमंद चीज़ है, लेकिन उसकी जो ज़बान है वो शाइस्ता होनी चाहिए। तो अंग्रेज़ी में वो कहते हैं कि लर्न द आर्ट ऑफ डिसएग्रीइंग विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल, कि आप नेस्टी ना हो और महज़ब तरीके से, शाइस्ता तरीके से क्रिटिसाइज़ करें। तो इन साहब की बात में ज़्यादा वज़न होता अगर ये अपनी ज़बान शाइस्ता रखते। शकील साहब 100% ठीक कह रहे हैं कि जो बात आपने की, जैसे मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, मैं जब उसकी बातें सुन रहा था ना तो मैं एग्री कर रहा था, यार ये बातें ठीक। मैं पहली दफ़ा देखा उसको और उसने मेरा भी नाम लिया, बल्कि मुझे बड़ा
وہ جو ہے نا ہنسی آئی تھی کہ وہ سچ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا یار وہ میں نام بھول گیا ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਖਬਰਨਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। काड़ा भी उसे याद रह गया, दूसरी चीजें याद रह गई, लेकिन somehow भूल गया। जी तो जी मुझे मैं बड़ा मुस्कुराया इस बात पे और मैं 100% एग्री करता हूँ कि वो वाकई जेन्युइनली बोला। उसने कई बातें बड़ी जेन्युइन की थी। क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि वो सरदार कमाल को एक साइड पे रखता। लेकिन फिर पुन्नू की बात याद आती है कि अगर सरदार कमाल को वो साइड पे रख देता तो फिर व्हाट वाज द फन इन डूइंग ऑल दिस। खत्म हो जाना सी। तो लुबे लुबाब इस पूरी गुफ्तगू का ये है कि आप भले से जो मर्जी कहें, आपको आपके हक से कोई नहीं रोक सकता। आप भले से कह दें कि कौवा सफ़ेद होता है और जो काला कहते हैं ये नाबीना है, ये सेंसिबल नहीं है। बात करने का अंदाज कम से कम ऐसा होना चाहिए जो मुहज़्ज़ब कहलाए, ताकि आपकी बात में वज़न हो, आपकी बात को सुना जाए और आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक जी। खबर है कि भिखारी ने बोरी भर सिक्कों के साथ अदायगी करके आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लिया। वाह। पर ये कहाँ का वाकया है? जोधपुर, इंडिया। या जोधपुर आई थिंक इज पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान। या सर, एक तो मतलब भिखारी के पास इतनी बोरी भर सिक्के उसने जमा किए, इतनी ज़रूरत या इमरजेंसी क्या थी लेटेस्ट मॉडल खरीदने की? शौक है उसका। नहीं। शौक का तो कोई वो नहीं ना हो सकता, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी ख्वाहिश थी एंड ही सेज कि मेरे पास जब पैसे हैं। यस। तुम एक सरकार को चैलेंज कर रहे हो कि वो बैंक ऑफ इंडिया जिसको एक्सेप्ट करता है, जिसको उसने जो सिक्का राइजुल वक्त है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो तुम्हारे खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। नहीं, लेकिन कॉइन्स इस तरह मतलब जमा कर करके वो नोट्स जमा नहीं करके वो बेचारा मांगता था, वो कलेक्टर नहीं था, बैगर था। आई मीन सिक्के जमा किए, उनको एक्सचेंज करा के कोई बेटर करेंसी नोट्स ले सकते थे। कैसे? एक फोन सेलर जिसकी इंटरेस्ट है इसमें बहुत लंबी चौड़ी, कम से कम 10 से 15 हज़ार उसका प्रॉफिट है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो हेजिटेंट है, तो कोई दुकानदार कैसे इसको चेंज करेगा? बैंक कैसे चेंज करेगा? नहीं, क्यों हेजिटेंट है? वो नहीं दे रहा था ना, उसने कहा जी मेरे पास इतने बंदे नहीं, गिनेगा कौन, निकलो यहाँ से। और टोटल प्राइस क्या थी? 2.5 लाख उसकी कीमत थी, बोरी भर उसके, वो कहता जी पूरे 2.5 लाख है। उसका अंदाजा भी होगा, उसने बोरियों के हिसाब से रखा होगा। एक जमाना था, आपको याद है जब सोने की अशरफियाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड की फिल्में जब आप देखते हैं तो उसमें किसमें होता है, कैनवस की सैक्स होती हैं छोटी छोटी, उनमें पड़ा होता है। तो उसको सिक्कों का अंदाजा था कि ये एग्जैक्टली इतने, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, तो मुझे वापस करोगे इसमें से। तो हुआ ये कि काफी शॉपकीपर्स ने उसको अवॉइड किया दूर से कि ये कहीं मांगने वाला है, और नहीं भाई नहीं, आउट। बड़े प्रेस्टिजियस गेस्ट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, बायर्स होते हैं, तो तुम अपना लिबास देखो, हैत क़िज़ाई देखो। एक दुकान वाला बाकायदा उसके साथ उलझने लग गया, क्योंकि अंदर ले गया ना, इसने कहा मेरे पास पैसे हैं यार, देख लो आगे को। जब उसने कहा कि ये पैसे हैं तुम्हारे पास, उठाओ यहाँ से, वो निकल गया वहां से। एक जो बिल्कुल करीब था ना, जिस शॉप से उसने खरीदा उसके बिल्कुल करीब था, जो उसका ख्याल था कि ये झूठ बोल रहा है, ये कोई फ्रॉड करेगा, या ये हमारे साथ जो है ना कोई हमसे मांग पिन करके कोई सिलसिला करेगा, पैसे अगर कम पड़ गए तो क्या कहे माफ कर दो। तो वो बाद में पछता रहा था, यार इसके पास तो एक्सेसिव पैसे थे। एक नेक दिल आदमी था, वो कहता है कि मेरे नज़दीक ये मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट थी कि मेरी शॉप से एक फकीर ने, गदागर ने सिक्कों की शक्ल में पेमेंट की, उसने उसके साथ तस्वीर उतरवाई, तस्वीर वायरल की। अपना अपना ज़ौक होता है, अपनी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। That's right. तो उसने किया, दोनों खुश, उसने उसको ऑनर किया, उसने उसका शुक्रिया अदा किया। अच्छा सर, हमारे यहाँ तो फौरन पैसे ट्रांसफर करते हैं, सिक्के दे के नोट ले लेते हैं। अच्छा वो तो ठीक है, ये आपके साथ क्या आइटम बैठा हुआ है? सर ये इंडिया का अमीर तरीन फकीर है पिछले साल का। अच्छा ये वो है जिसने एक फ्लैट खरीदा, ख्वातीन और हज़रात, 1,40,00,000 रुपए मालियत का, फिर इसके पास प्लॉट्स हैं। तो फकीर कहे का, तो फकीर देख लें, उसका हुलिया देखें, फकीर है। फिर इसकी 2 दुकानें हैं जिनसे ये मंथली किराया लेता है, और इसकी टोटल वर्थ जो है दैट इज मोर देन 7 करोड़, 7 करोड़ इंडियन। 7 करोड़ इंडियन का मतलब है कि तकरीबन 25 करोड़ पाकिस्तानी। वाओ।
سر جب 2010 میں سیلاب آیا تھا تو ہمارے مظفر گڑھ کا ایک علاقہ شاہ جمال، وہاں کا ایک فقیر وائرل ہوا تھا شوکت بھکاری. تو اس نے فنڈز دیے تھے سیلاب زدگان کو، پیسے دیے تھے، اور اس نے باقاعدہ علل اعلان کہا تھا کہ جس کو مدد کی ضرورت ہے وہ میں کروں گا. واہ، ایسا ہے بالکل. 6 لاکھ روپیہ گجرانوالہ میں ایک فقیر کی کٹیا میں سے نکلا تھا اور آدھے سے زیادہ چوہے کھا گئے تھے. کافی سال پہلے کی بات ہے، ایک سوشل ویلفیئر آفیسر تھا جو فقیر بن کے بادشاہی مسجد کے باہر بیٹھ گیا جمعے کے دن، اور اس کو جو خیرات ملی وہ اس کی تنخواہ سے زیادہ تھی. واہ واہ واہ. رجنی کانت جو انڈین سنیما کا ایک بہت بڑا آئیکن ہے، 2007 کی بات ہے، اس نے اپنی فلم شیوا جی کی سکسیس پہ مندر جا کے شکرانے کے لیے، تھینکس گیونگ کے لیے بندہ جاتا ہے، تو اس نے کہا جی میں نے وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے مت جائیے، یو آر سچ اے نون فگر، تو سیکیورٹی پرابلمز ہوں گے، آج کل مسائل بھی ہیں. 2007 کی بات ہے. تو یہ اپنا روپ ایک بابے کا دھار کے چلا گیا، تو سیڑھیوں پہ بیٹھا جوتا پہن رہا تھا، ایک عورت اس کو 10 روپے دے گی. استاد جی وڈی دنیا رچنی کہاں صاحب، توبہ توبہ توبہ. پھر استاد 2 سال اسے بہ کے منگتے رہنے. خواتین حضرات، ہم نے ڈمی میوزیم سے بلا رکھا ہے اس فقیر کو جس نے پوری کی پوری سکوں کی انڈیل دی دکاندار کے آگے اور آئی فون 15 پرو میکس خریدا. اور ساتھ ہی ہم نے وہ نیک دل دکاندار جو اس وقت انتہائی پراسرار وجوہات کی بنا پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور ایک دکاندار جو ریڈ شرٹ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پرو میکس کا نام بھی لو، بیکاز ہی واز شیور کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے بوری میں پیسے؟ اس نے کہا پیسے کدھر ہے؟ کہتا ہوں باہر پئی ہے بوری. یعنی 2.5 لاکھ روپیہ اس نے باہر بوری میں رکھا ہوا ہے اور آ گیا اندر. تو کوئی بھی اور ہوتا تو اسے یقین نہیں آنا تھا. تو یہ تینوں ہم نے آج بلا رکھے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے یہ بوری بھر کوائنز جمع کر رہے ہیں؟ تو میں کافی عرصہ ہو گیا، 2-2.5 سال ہو گئے، ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕੋਇਨ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਪੇ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ. ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਰੱਖਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਪਿਆਂ 'ਚ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕੀਆ ਕੈਸੇ? ਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਜ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਠੀਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਲੁੱਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲਾਤੇ. 5ਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜ ਗਿਣੇ. 6.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਏ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ. ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਤੀ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਵੈਸੇ ਭਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ. अच्छा फकीर भाई एक बात बताएं, आपने कोई इलाका सेलेक्ट किया हुआ या जगह जगह मांग तांग के? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋਧਪੁਰ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, 200 ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ. जोधपुर कहाँ? तुम पंजाबी बोल रहे हो? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ. 1-2 ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਦਫਾ ਠੀਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਚੱਲਣਗੇ. ਅੱਛਾ ਚੱਲਣਗੇ? ਚੱਲਣਗੇ. ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਤਮਾਦ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ. ਪਾਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਸਿਰਫ ਆਈਫੋਨ ਦੇਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, YouTube ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਮਕਾਣ ਡਿਆ. ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਤੇ. तो तुम क्यों साड़ फकरे हुए खबीस इंसान? यार साहब 7 करोड़ का मालिक हूँ मैं. और तुमसे बहुत बेहतर है वो जो सामने बैठा है, 7 करोड़ का मालिक वो है. ਤੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? लोगों से लिया है, मैंने कहाँ से लेना? सारे तुम्हारी तरह चवल ही नहीं होते, खुले दिल वाले भी होते हैं. ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਤ ਹੋਣ ਡਿਆ. किस उम्र से मांगना शुरू किया हुआ है आपने? 9 साल की एज से मैं चाइल्ड स्टार ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ. तो तुम्हारा अब्बा भी मांगता है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮਿਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਵੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ. ये ऐनक वाला? ਆਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ, ਪੜਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੜਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ. लाहौर में भिखारियों ने ट्रैफिक सिग्नल जो ख़राब हो गया था उसकी रिपेयर खुद करवाई. जी जी जी, इसलिए कि गाड़ियाँ नहीं रुकती थी. यस. तो यार क्या बात.
हमारा नुकसान होता है यस ये कौन सा एरिया है? जौहर टाउन प्रॉबेबली ਮੌਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠਾ ये जो साथ बैठा हुआ है ਆਹੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ वो यार वो इशारा करता है 2 बैठे हुए हैं ना इधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੂੰਗੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 5000 ਮਿਲੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ कौन सा वाला ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।